baby crib is actually very beautiful. It's pair of onesies खरीदे, quality बहुत अच्छी है, बहुत absorbent है. Bought this bottle sanitizer. Hi friends, welcome back to my channel Wonder Mom Diaries. If you are new here, I am a first time mom of a 5-month-old baby, and on my channel I share the beautiful bumpy ride of motherhood. Today's video is going to be a very interesting one. The topic of today's video is how I prepped for my baby's arrival. What all things I did so I really felt ready. I can totally relate to the excitement of expecting parents because I have also been in that place. जब मैं pregnant थी तो I know I was very excited and nervous as well. And उस time पे I was looking for such kind of videos which would help me be prepared. I really want this video to be a go-to guide for all the expecting parents out there. And आप please ये वीडियो को end तक देखिए so that आपको सारी चीज़ें पता हो कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है अपने बेबी के arrival से पहले. So without any delay, let's start the video. So first on the list is nursery essential. For that, I bought a very beautiful cot from Honey Honey. I'll share a clip here. So this baby crib is actually very beautiful. It is made up of pine wood and the quality is also very nice. When it arrived, we actually saw it and we fell in love that how good it was actually looking. Baby के safe sleep के लिए एक firm mattress भी मैंने इसके साथ ही order करा था and कुछ bed sheets भी order करी थी. Also wanted to make sure that the crib was clutter free for the safety of the baby. crib के अंदर जो मैट्रेस था उसके लिए मैंने ये 2 कॉटन की बेडशीट्स ऑर्डर करी थी. ये एक है और एक crib में ऑलरेडी बिछा हुआ है. ये कॉटन बेडशीट्स हैं. द क्वालिटी इज रियली गुड एंड द प्रिंट वाज आल्सो सुपर क्यूट. And I think this is from the brand Abracadabra. It was on Amazon. I will share the link and I will also share the screenshot of the product here. I also bought this set of muslin swaddle. इसमें 3 का सेट आया था ये एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. प्रिंट्स भी बहुत क्यूट है. इसके बहुत यूजेस हैं. लाइक आप इसको मैट्रेस के ऊपर भी बिछा सकते हो तो ये और ज़्यादा वार्म कोजी फील देगा बेबी के लिए. एंड और आप इससे बेबी को रैप कर सकते हो, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ को. ओके, सो माई बेबी अप्रूव्ड दैट. बेबी को रैप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. बेबी विल फील वेरी वार्म. न्यूबॉर्न्स को हम अक्सर स्वाडल से रैप करते हैं. एंड साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था जब आप पब्लिक में फीड कराना चाहते हो तो आप इससे अपने आप को कवर अप कर सकते हो एंड इजीली बेबी को फीड करा सकते हो. तो ये बहुत ही अच्छा बाई है. I forgot to mention the brand of these swaddle. This is from the brand Haus and Kinder. I hope I'm not butchering the name. So from the same brand we also ordered this baby bed cum carrier. ये बहुत important चीज़ है गाइज. ये आप ज़रूर खरीद के रखना. एक्चुअली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. दिस ब्रांड सर्व्स द बेस्ट क्वालिटी. ये पूरा कॉटन मटेरियल है. वी ऑल्सो गॉट वन फ्रॉम द हॉस्पिटल व्हेन वी वर बीइंग डिस्चार्ज, बट उसकी क्वालिटी ऑनेस्टली उतनी बढ़िया नहीं है. इवन उसका विड्थ एंड मतलब लेंथ एंड विड्थ भी उतना बढ़िया नहीं है. इसका बहुत अच्छा है. लाइक माई बेबी यूज्ड इट वेरी मच. आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट. ये जो है ये यहाँ से ऐसे बंद हो जाता है. आई विल शो. दोनों साइड से बंद हो जाता है एंड यहाँ से भी. And यहाँ पे you can carry your baby inside. And this is like really good, very good quality. This is how it looks after closing all the chains. And अगर आप इसे खोल दो सारे chains को तो you can use it as a mattress also on your bed. It's super cute, very good. So the next item in the bedding essential for the nursery was this cute blanket. I think I bought it from Amazon. I'm not very sure. I will check it and I will share the link. The quality of this blanket is really good. It is cotton but ये I think multi layer है तो काफ़ी warm रहता है. And color भी बहुत अच्छा था. And ऐसा कोई specific नहीं था that I want something in blue color or pink, but this was the color which I was gravitating towards. So मुझे बस प्यारा लगा. अजीब सा एक्वा ब्लू कलर है. मुझे बहुत क्यूट लगा एंड आई ग्रैब दिस. इसकी रिव्यूज अच्छे थे एज फार एज आई रिमेंबर एंड दैट्स व्हाई आई बॉट इट. द नेक्स्ट आइटम इन बेडिंग एसेंशियल विच आई बॉट इज दिस राई पिलो. आई थिंक आई बॉट इट फ्रॉम Amazon. आई विल confirm and just share the link. Doctors are not a big fan of Rai pillow, and honestly
I didn't use it very much either. I'm planning to make a separate video in future of things which I bought but I didn't end up using. So guys, the next item on the list is clothing essentials. You will be surprised to know that babies बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं. तो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने बहुत मिनिमल शॉपिंग करी थी क्लोथिंग्स की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा खरीद लूँ और वो बाद में वेस्ट हो जाए. तो मैंने कुछ पेयर ऑफ वंसीज खरीदे एंड मैं आपको बताऊँगी कि मैंने एक एक करके क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं. जैसे मैंने कुछ ये वंसीज बेबी के लिए खरीदे थे. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड H&M. मेरी बेबी ने बहुत यूज़ किया है. सम फुल स्लीव्स वंसीज लाइक दीज एंड कुछ मैंने खरीदे थे ऐसे हाफ स्लीव्स वंसीज, सो दैट मैं वेदर के अकॉर्डिंग, वेदर के अप्रोप्रिएट मैं बेबी को कपड़े पहना सकूं. और कुछ मैंने ऐसे हाफ लेंथ, काफ लेंथ वाले भी वंसीज खरीदे थे. एंड साथ ही मेरी डिलीवरी क्योंकि अगस्त में हुई थी तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा वेदर और ज़्यादा ठंडा हो सकता है, तो मैंने बेबी के लिए कुछ स्वेटर आइटम्स भी खरीदे थे. तो येस, फॉर दैट मैंने ये एक बहुत क्यूट सा सेट खरीदा था. ये हुडी वाला ऊपर का कार्डिगन है एंड ये उसके साथ क्यूट सी पैंट है. ये सेट बहुत क्यूट था, मुझे बहुत क्यूट लगा, तो ये मैंने बेबी के लिए ख़रीदा था. बट ये मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया बिकॉज बैंगलोर में इतनी भी ठंड नहीं पड़ती है. इनफैक्ट बेबी होने के बाद आई रियलाइज्ड कि हाफ स्लीव्स का स्वेटर वाज मोर देन इनफ फॉर हिम, सो मैंने कुछ वो चीज़ें बाद में खरीदी. इसके अलावा क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ के जो नेल्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं, तो दे ऑफन स्क्रैच देयर फेसेस, सो इसके लिए मैंने कुछ मिटन्स भी ऑर्डर किए थे. एक्चुअली आप चाहे तो ये मिटन्स, बूटीज़ एंड कैप का एक सेट आता है, उसके साथ आप ऑर्डर कर सकते हो बिकॉज बेबीज़ को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को आपको कैप भी पहनाना पड़ता है एंड ये मिटन्स भी उसके साथ में मिल जाते हैं, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो. मैंने भी वैसे ही वाला ख़रीदा था. और साथ ही मैंने बेबी के लिए उसका एक टॉवल भी ख़रीदा था पहले ही. ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था. ये मुझे बहुत क्यूट प्रिंट लगा था. बेबी बहुत यूज़ करता है, इट्स ऑलरेडी 5 months नाउ यूज़ करते करते. तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत एब्जॉर्बेंट है एंड प्रिंट भी बहुत क्यूट लगा था मुझे. मैं इसका भी लिंक शेयर कर दूंगी. मुझे बहुत डाउट था कि कहीं ऐसा कोई टॉवल मैं ना खरीद लूँ जो एब्जॉर्बेंट ना हो, बेबी को मैं अच्छे से वाइप ना कर सकूँ, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है. इसके अलावा मैंने बेबी के लिए कुछ पेयर ऑफ सॉक्स भी खरीदे थे न्यूबॉर्न साइज़ के. आई थिंक 3 या 4 का सेट था, तो ये भी बहुत क्यूट थे. मैंने ये परचेज़ किया था, मुझे प्रिंट भी बहुत अच्छा लगा. तो ये भी मस्ट बाय है बिकॉज बेबीज़, जब न्यूबॉर्न बेबीज़ को आपको अच्छी तरह से कवर अप रखना चाहिए, उनको कैप, सॉक्स वगैरह, क्योंकि उन्हें ठंड ना लग जाए. अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट मैंने बेबी के लिए ये सेट ऑफ मसलिन नैपकिन्स भी खरीदे थे. ये मैंने अमेजन से खरीदा था. इसका प्रिंट बहुत क्यूट है, यू कैन सी. ऐसे ये आई थिंक 10 का सेट है. तो ये बहुत ही काम की चीज़ है. आपको बेबी का फेस वाइप करना हो या फिर बेबी का बॉडी वाइप करना हो, इनिशियल फर्स्ट आई थिंक 2 weeks के लिए, जब तक बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड वो शेड नहीं होता है, तब तक आप बेबी को स्पॉन्ज बाथ देते हो. मतलब बेबी को सिर्फ वाइप करते हो, आप नहला नहीं सकते हो पानी डाल के. तो इन दैट केस ये बहुत हैंडी होता है, ये बहुत यूज़ आता है. आप इसको अच्छे से गर्म गुनगुने पानी में भिगो के बेबी को इजीली वाइप कर सकते हो. तो एंड ऑल्सो गाइज, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जब आपको बेबी का माउथ कैविटी वाइप करना पड़ता है बिकॉज उनमें मिल्क डिपॉजिट होने लगता है, तो आप इन मसलिन क्लॉथ्स का यूज़ कर सकते हो. मैं ऐसे ही मसलिन नैपकिन जो सेपरेट मैंने रखा है सिर्फ उसका माउथ क्लीनिंग के लिए, तो वो आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपको पानी कैसे पूरा बॉईल करके देन ठंडा करके उसमें मसलिन क्लॉथ डिप करके आपको बेबी का माउथ कैविटी क्लीन करना पड़ता है. तो ये उसके लिए भी काम आता है. नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट आर दीज कॉटन के नैपकिन्स. ये प्रिंटेड वाले कॉटन के नैपकिन अमेजन पे मिल रहे थे, ये हैंकी. ये भी बहुत काम आता है जहाँ पे भी व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट, और इवन घर पे भी आपको बार बार बेबी जब ड्रूल करते हैं या फिर मिल्क थ्रो अप करते हैं, बार बार उनका फेस वाइप करने के लिए, तो ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का है और ये बहुत ही हैंडी रहता है. जब भी यू कैन ग्रैब दिस एंड यू कैन ईजिली वाइप योर बेबीज फेस. मेरे बेबी को डाइपर फ्री टाइम देने के लिए आई ऑल्सो गॉट दीज लंगोट्स, कॉटन के लंगोट. ये बहुत यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी काफ़ी मंथ से. तो ये सेट आया था 10 आई थिंक 10 का सेट था. तो ये लंगोट मैंने ऑर्डर की थी. डाइपर फ्री टाइम के लिए बहुत कन्वीनियंट है
एंड ये बहुत इजीली वॉश भी होता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आप ये ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ये झबला भी ऑर्डर किया था बेबी के लिए। ये भी कॉटन मटेरियल का है, बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत बढ़िया है। बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट यूज़ इट बिकॉज बैंगलोर में इतनी गर्मी भी नहीं होती है कि मैं ये पहना सकूँ। और अगस्त मंथ में डिलीवरी थी तो बेबी को थोड़ा सा कोजी रखना ज़रूरी था, तो फॉर दैट आई वॉज ओनली यूजिंग द वंसीज विच आई बॉट। तो गाइज आफ्टर द क्लोथिंग एसेंशियल द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज फीडिंग एसेंशियल। एंड मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि उसमें मैं इस कैटेगरी में मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज करी हैं। So firstly I bought this bottle sanitizer from the brand Love Lab। ये भी हमने Amazon से ऑर्डर करा था। ये बॉटल सैनिटाइज़र है, आप इसको प्लग इन करके अंदर इस कंपार्टमेंट में यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे आई शो यू, यहाँ पे वाटर डाल के एंड इस कंपार्टमेंट में बॉटल के सारे कंपोनेंट्स डाल के आप सैनिटाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम विच आई बॉट वॉज दिस पम्प टू एक्सप्रेस मिल्क। ये मैनुअल पंप है, ये फिलिप्स का है। तो ये मैनुअल पंप है ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करने के लिए। सो इनिशियल फ्यू डेज में बॉडी को मिल्क प्रोड्यूस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अगर आप थोड़ा सा भी अनश्योर है कि बेबी को प्रॉपरली फीड जा रहा है कि नहीं, तो यू कैन एक्सप्रेस योर मिल्क। इवन डॉक्टर्स ऑल्सो एडवाइज टू डू दैट बिकॉज इनिशियल फर्स्ट 1-2 वीक में बेबी का वेट बेबी थोड़ा वेट लूज करते हैं, तो और वो बर्थ वेट रिगेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इस तरह मिल्क एक्सप्रेस करके दे रहे हो तो यू आर श्योर कि योर बेबी इज बीइंग फेड वेल। इसके अलावा मैंने ये बॉटल भी खरीदा था, ये है फिलिप्स एवेंट ब्रांड का। इसके ऑनलाइन रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो ये कन्वीनियंट होता है जब आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपना मिल्क एक्सप्रेस करके ले जाना चाहते हैं बॉटल फीड कराने के लिए, ये बहुत सही है। मैंने इनिशियल 1-2 मंथ्स में बॉटल फीडिंग अवॉइड किया। तो इनिशियल वीक्स में डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप बॉटल से फीड ना कराएं बिकॉज देयर कुड बी निपल कन्फ्यूजन हो सकता है बेबीज़ में। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इस तरह से स्पून वाला बॉटल से फीड करा सकते हो या फिर कटोरी चम्मच से भी फीड करा सकते हो। तो वी बॉट दिस बॉटल फीडर, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड फर्स्ट स्टेप। सो आफ्टर फीडिंग एसेंशियल्स द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज हाइजीन एसेंशियल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बेबी बॉटल एंड पंप वगैरह खरीदा था, तो उन सबको क्लीन करने के लिए मैंने ये एक मीमी ब्रांड का जेंटल बेबी लिक्विड क्लेंजर है, ये परचेस करा था। इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ये बहुत सही है, बहुत माइल्ड क्लेंजर है। तो ये बेबी के जितने भी फीडिंग एक्सेसरीज हैं उनको क्लीन करने के काम आता है। एंड बेबी क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए भी मैंने एक माइल्ड डिटर्जेंट खरीदा था, ये भी फ्रॉम द सेम ब्रांड मीमी। आई परचेस्ड इट फ्रॉम Amazon एंड मैं आपको सारे लिंक दे दूंगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये क्लेंजर और ये डिटर्जेंट के आपको रिफिल पाउचेस मिल जाएंगे। तो यू डोंट नीड टू बाई दीज बॉटल्स एवरी टाइम, आप इनके रिफिल पाउचेस खरीद के इनको वापस से रिफिल करके यूज कर सकते। सो गाइज हाइजीन एसेंशियल में द नेक्स्ट आइटम इज बेदिंग एसेंशियल, जिसके लिए मैंने ये सेबामेड का जेंटल वॉश खरीदा था। ये बेबी के लिए बॉडी वॉश एंड शैम्पू दोनों का काम करता है। बेबीज डोंट नीड शैम्पू अलग से। और साथ ही मैंने खरीदा था ये बॉडी मिल्क फ्रॉम द सेम ब्रांड सेबामेड। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मैंने यूज़ करा है। ये बेबी को नहलाने के बाद आप उनकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट आई प्रेफर कोकोनट ऑयल ओवर दिस बिकॉज मैंने फील करा है कि मेरी बेबी को कोकोनट ऑयल और ज़्यादा सूट करता है। मैंने सेबामेड से एक मसाज ऑयल भी, बेबी मसाज ऑयल भी ऑर्डर करा था। तो आप जब भी बेबी को दिन में 1-2 बार मसाज करते हो तो आप इस ऑयल का यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। मैंने एक डाइपर रैश क्रीम भी खरीदा था फ्रॉम द सेम ब्रांड सेबामेड। मैंने काफ़ी ऑनलाइन रिसर्च किया एंड आई फाउंड दिस टू बी द सेफेस्ट फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। एंड ये काफ़ी अच्छा क्रीम है। आफ्टर यूजिंग इट आई कैन से दैट इट इज़ रियली अ गुड प्रोडक्ट। Guys, after the hygiene essential we come to the next which is grooming essentials. So newborns को बहुत ज़्यादा grooming की ज़रूरत नहीं है, but I purchased this baby OA का grooming kit. इसके reviews अच्छे थे। I will quickly show you कि इसमें क्या क्या products हैं and मैं कौन सा product actually use करती हूँ। So the first one is this baby comb, बहुत ही cute सा comb है, बहुत soft bristles हैं इसके, you can see। तो ये मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ। मेरे बेबी के बहुत ज़्यादा हेयर्स नहीं है तो लेकिन बट मैं कभी कभार उसको कोम कर देती हूँ। एक ऐसे ही थोड़ा सा हार्ड वाला कोम है, आई थिंक ये मैं आगे जाके बाद में कभी यूज़ कर सकती हूँ, अभी तो फिलहाल वो बहुत छोटा है। नेक्स्ट इन द किट इज़ द स्मॉल सिजर्स।
ये मुझे नहीं पता, आई थिंक ये नेल कटिंग के लिए, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट। के साथ ही इसमें एक नेल कटर है, बेबी नेल कटर। ये बहुत ही मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। मैं बेबी के नेल्स इसी से कट करती हूँ। अब गुड क्वालिटी का है, छोटा सा है। और ऐसा केस है जिसमें माउथ क्लीनिंग टूल है, आई गेस। आई विल जस्ट ओपन इट। आप इसको फिंगर में लगा के बेबी के आई थिंक गम्स या फिर टीथ क्लीन कर सकते हैं। बट मेरे बेबी के भी टीथ आए नहीं हैं, और गम्स मैंने बताया कि मैं मसलिन क्लॉथ से प्रेफर करती हूँ बिकॉज डॉक्टर टोल्ड मी टू डू दैट। ऑल्सो अ सेट ऑफ फाइलर्स मैंने कभी यूज़ नहीं किया है बिकॉज मेरा नेल कटर से ही काम चल जाता है, तो आई हैव नेवर यूज दिस। आई डोंट थिंक इट विल वर्क ऑल्सो, बट ये है इसमें। या सो दैट वॉज ऑल इन द किट, जिसमें से मैंने सबसे ज़्यादा कोम नेल कटर यूज़ किया है। सो गाइज, नेक्स्ट इन द लिस्ट इज मैटरनिटी एसेंशियल। यस, हमने बेबी के प्रोडक्ट की तो बहुत बात कर ली, अब होने वाली माँ को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है उनकी भी बात कर लेते हैं। सो फॉर दैट द फर्स्ट आइटम विच आई बॉट वॉज दिस डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज, अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट वंस। सो आफ्टर डिलीवरी बहुत हैवी फ्लो होता है, तो इन दैट केस न्यू मदर्स कैन वेयर दीज पैंट स्टाइल अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट मैटरनिटी पैड्स। तो ये पैंट स्टाइल है, आप इसको इजीली पहन लो और इसमें कोई भी लीकेज का कोई भी टेंशन नहीं रहता है। नेक्स्ट आइटम विच आई परचेज्ड आर दीज डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स। तो ये राउंड एब्जॉर्बेंट ब्रेस्ट पैड्स होते हैं। सो ये ब्रेस्ट पैड्स में बेसिकली एक साइड स्टिकी होता है जिसको आप स्टिक कर देते हो अपने मैटरनिटी ब्रा से, एंड ये प्रिवेंट करेगा आपका एक्सेस ब्रेस्ट मिल्क फ्लो। अगर आप कभी भी बाहर जा रहे हो तो आपके कपड़े नहीं खराब होंगे। यू कैन वेयर दीज एंड यू कैन कॉन्फिडेंटली गो आउट। नेक्स्ट आइटम विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आर मैटरनिटी अंडरवेयर्स। सो मैटरनिटी पैंट्स आप खरीद सकते हैं जो कि हाई वेस्टेड पैंट्स होते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, स्पेशली अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो वो स्कार के पास में आप नहीं चाहोगे कि कोई भी इलास्टिकेटेड बैंड आपको मतलब वहाँ पे परेशान करे। सो इन दैट केस आपको ये हाई वेस्ट मैटरनिटी पैड्स बहुत ही कन्वीनियंट फील होंगे, तो आप इनमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। एंड साथ ही साथ माई टू बी मॉमीज, आप मैटरनिटी ब्रास भी खरीद के रख सकते हैं, वो बहुत ही कन्वीनियंट होने वाला है आपके लिए। बेसिकली क्या होता है कि वहाँ यहाँ पे उसके एक हुक होता है, यू कैन अनक्लैस्प इट एंड आप इजीली बेबी को कभी भी फीड करा सकते हो। नेक्स्ट आइटम इन द मैटरनिटी एसेंशियल्स इज दिस मैटरनिटी बेल्ट विच आई परचेज्ड। दिस ऑल्सो आई परचेज फ्रॉम Amazon। ये एक्चुअली क्या होता है, आपको डिलीवरी के बाद अपने वेस्ट के अराउंड टाइटन अप करके रखना होता है, सो दैट इट कैन हेल्प इन टमी रिडक्शन आफ्टर डिलीवरी। तो मैंने इसे मॉडरेटली यूज़ किया है, ऐसा भी नहीं कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा डिलीजेंटली यूज़ किया है। तो यू कैन चेक दिस प्रोडक्ट आउट, अगर आपको लगता है यू विल यूज़ इट तो आप इसे खरीद सकते हो। वन इम्पॉर्टेंट आइटम विच आई completely forgot to talk about is baby diapers. So after doing extensive online research, I found that Pampers का newborn diaper is of really good quality and मैंने अपने बेबी के लिए वही परचेज किया था। I currently do not have that product, so मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर कर दूंगी। My baby is 5 months old now, so now my baby is using another brand and different style diapers. So newborn के लिए बेसिकली आप टेप स्टाइल डाइपर्स यूज करते हैं, तो आप ये प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं। So the last item on the list is travel essential. For that, I have this cute diaper bag which was gifted to me by my friend. I will share the screenshot here. एंड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात की है कि कैसे वो बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम है, वो आप ज़रूर परचेज करके रखें। एंड अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आई एनकरेज यू टू गो एंड वॉच दैट, कि मैं उसमें क्या क्या चीज़ें बेबी के लिए कैरी करती हूँ टू मेक माई ट्रैवल हैसल फ्री एंड ईजी। Before leaving, one important tip which I would like to share is that don't go overboard while shopping for clothing items for your baby, because babies grow faster than you can imagine. हालांकि मैंने अपनी बेबी के लिए बहुत ही माइंडफुल होकर शॉपिंग करी थी, बट स्टिल देयर वर फ्यू आइटम्स विच आई डिड नॉट एंड अप यूजिंग। सो आप भी जितना एसेंशियल है बस उतना ही खरीदे, बहुत ज्यादा चीजें ना खरीदे। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू ऑफ माई टिप्स विच आई डिड टू मेक माई सेल्फ कम्प्लीटली रेडी फॉर द बेबीज अराइवल। तो मैंने एक्चुअली बेबी के सारे क्लोथ्स 2-3 बार अच्छे से बेबी के वो माइल्ड डिटर्जेंट से वॉश करके आयरन करके अच्छे से रखे थे। साथ ही साथ मैंने बेबी का जो बेबी कॉट है वो पहले ही अपने हस्बैंड से असेंबल करवा लिया था, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि चीजें एंड के लिए पाइलअप होके पड़ी है। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग। चाहती हूँ कि ये वीडियो आपको इंस्पायर करे, सो यू आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, ताकि आपको एंड मोमेंट के लिए कोई भी किसी भी टाइप का स्ट्रेस ना रहे। And also to my to-be mamas, happy pregnancy. I hope you have a safe delivery.
एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू लीव योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज मुझे बताएं कि आपको कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूजफुल लगे। एंड अगर आपके पास कोई न्यू टिप्स है फॉर द टू बी मामाज, प्लीज उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। And if this video was helpful, please don't forget to like it and share it with your friends. And please subscribe to my channel for more such content. I will see you next time. Bye bye.